Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 12 of this playlist Dynamic Programming, we are going to see longest common subsequence problem and its DP memoization version. Okay, so previous video में हमने longest common subsequence होता क्या है, उसकी problem statement एंड उसका कैसे हम रिकर्जन कॉल कर सकते हैं, ठीक है, रिकर्जन का सॉल्यूशन उसका कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फिर उसको कोड करके भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के बारे में जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन होती थी हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, so just go and watch that video because that video is obviously a prerequisite to this video, and in this video we are going to build a DP solution for LCS, ठीक है, fine. So before starting this video I have a general information to you regarding Newton School. So basically Newton School, as Newton School is an e-learning platform, they have a grand coding contest scheduled for you in this month only. Okay, so like you have 2 days to register in this contest. There is zero registration fee for you, and 50,000 people has already registered to this contest. What you can do is you can just come to newtonschool.co and sign up or log in for free and register in this contest and participate. What they have for you is they have cash prizes of worth 5 lakhs. So what they have is first prize and second prize and third prize for 50k, 25 and 15k, and not only this, they also have like 1500 plus Amazon gift cards for different participators in this grand coding contest. Okay, and not only this, then they have exciting goodies and gadgets also, and after that, most amazing thing is they have job opportunities also. Like they have Amazon amazing hiring partners like Zomato, Byju's, Razorpay, Meesho, Vimeo. So there is it is very important grand coding contest in Newton School. You can just come and participate for free, and obviously you are going to get something from this. Okay, and not only this, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel where we have different things for you. Like we have different playlists for free, like dynamic programming, JavaScript, C++, and data structures and algorithms also, which are getting updated regularly on regular basis. So you can just go and subscribe and bookmark which playlist, whichever you want. Now let's just go to today's video, and in today's video we are going to learn LCS DP memoization. Okay, तो मैंने LCS ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था होता क्या है, मैं एक बार फिर से ब्रीफ करता हूँ LCS होता क्या है, ठीक है। तो LCS मैं लीस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को कहता हूँ, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, सॉरी, LCS इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अब अगर आपने कोडिंग की है तो आपको इससे ही समझ में आ गया होगा दैट वी हैव 2 सीक्वेंसेस, और इन जनरल आई से कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, सपोज स्ट्रिंग x एंड स्ट्रिंग y, ठीक है, और लेट से ये स्ट्रिंग्स कुछ ऐसी हैं a b c d e f, ठीक है, और a c d e g, ठीक है। तो अगर इन दोनों में मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, a कॉमन है दोनों में, ठीक है, देन c कॉमन है दोनों में, देन d कॉमन है, एंड देन e कॉमन है। तो यू कैन से कि इन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस 4 है, ठीक है। अब इस चीज को हमें कोड कैसे करना है, तो वन कोडिंग स्टाइल कैन बी ब्रूट फोर्स, ब्रूट रिकर्जन। ओके, ब्रूट रिकर्जन को ऑब्वियसली ब्रूट नहीं कह सकते, ठीक है। तो रिकर्जन, तुम क्या करोगे, रिकर्जन में सारे के सारे पॉसिबल सबसीक्वेंस जो कॉमन हो सकते हैं वो तुम जनरेट करके चेक करोगे, और लॉन्गेस्ट उसमें से जो भी होगा तुम उसको कॉल कर लोगे, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा x और y का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। फाइन, नाउ एज वी ऑल नो कि रिकर्जन की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो जितनी भी कॉल्स बढ़ती जाएंगी तो एक्सपोनेंशियल लाइक 2 की पावर n समथिंग रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी चल जाती है कई केसेस में, तो वो बहुत ज्यादा है ना। और उसके लिए फिर हम सॉल्यूशन बनाते हैं डीपी का, ठीक है। डीपी का सॉल्यूशन बेसिकली कब बनता है, डीपी का सॉल्यूशन बनता है जब we have overlapping सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो हम सब प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रिकर्जन, सपोज हम किसी चीज का रिकर्जन लिखते हैं, है ना, और ड्यूरिंग रिकर्जन हम सेम रिजल्ट, सेम सब प्रॉब्लम का रिजल्ट, सपोज हमें जैसे ये एक्स वाई है,
ठीक है, और एक्स वाई में अभी हम कितनी, सपोज आई से कि मैंने इस टोटल की लेंथ ले ली है n, ठीक है, और y की लेंथ ले ली है m, तो अभी हम टोटल स्ट्रिंग्स कितनी है n और m लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए रिकर्जन लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर हम उससे रिकर्जन मान लो n-1 और m-1 में जाते हैं, या फिर n और m-1 में जाते हैं, ठीक है। इस तरह हम छोटा करते करते इनको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते हैं इन रिकर्जन। और होता क्या है कि कई सारी सब प्रॉब्लम्स हमारी रिपीट होती हैं, ठीक है, और उन सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करते हैं, डीपी का कोड लिखते हैं, डीपी मेमोराइजेशन। तो नाउ वी नो कि डीपी मेमोराइजेशन हम क्यों लिखेंगे इस एलसीएस में। होगा क्या कि कई सारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी और उन सब प्रॉब्लम्स का हमें रिजल्ट बार बार वाया रिकर्जन ना निकालना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को कहीं पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और सेम हम यहां पे भी करने वाले हैं इन डीपी मेमोराइजेशन इन एलसीएस क्वेश्चन, ठीक है, फाइन। नाउ अगर हम एक बार रिकर्जन इसका और रिकॉल करें जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक बार ब्रीफ में और देखें, तो मैं रिकर्जन में सबसे पहले हम बेस केस कुछ लेते हैं, और बेस केस के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ रिकर्जन कॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मोर देन वन रिकर्जन कॉल, मोर देन वन रिकर्जन कॉल, लाइक 2, 3, 4, बस मोर देन वन होनी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, अगर सिंगल रिकर्जन कॉल हर बार हो रही है तो उधर पे होगा क्या, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएंगे तुम्हारे पास, ऐसी सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो तुम्हारी बार बार तुम कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। तो वहां पे तुम्हें डीपी मेमोराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम किसी रिजल्ट को स्टोर कर भी लोगे, सपोज तुमने करंट स्टेट का रिजल्ट स्टोर किया, वो आगे तुम्हारे जाके यूज नहीं होने वाला, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर स्पेस, ओके। तो मोर देन वन रिकर्जन कॉल होनी चाहिए, एंड ये तुम्हारे डीपी मेमोराइजेशन का एक यू कैन से प्री रिक्विजिट है, ठीक है, फाइन। अब इसका डीपी मेमोराइजेशन लिखते कैसे हैं ये देखते हैं, बट उसके पहले हमें ऑब्वियसली रिकर्जन पता होना चाहिए, क्योंकि मेमोराइजेशन होता क्या है, सिंपली रिकर्जन कोड में तुम क्या करते हो, स्टोरेज अप्लाई कर देते हो, ठीक है। तुम जो जो नया रिजल्ट ड्यूरिंग वन रिकर्जन कॉल निकाल रहे हो उस सब को स्टोर कर लेते हो कहीं पे, ठीक है, फाइन। अब उसके लिए हमें ऑब्वियसली रिकर्जन पता होना चाहिए, तो रिकर्जन होगा क्या, सिंपली ये देखते हैं। इसका रिकर्जन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा समझाया था, मैं एक बार ब्रीफ में इसका कोड दिखा के आप लोगों को रिकर्जन समझाता हूं, तो आप लोग को और अच्छे से मेमोराइजेशन समझ में आएगा, ठीक है। और अब इसका पूरा मेमोराइजेशन हम यहीं पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फाइन। तो होता क्या है कि रिकर्जन में सबसे पहली चीज क्या होती है हमारे पास, बेस केस। बेस केस मेरे पास क्या हो सकता है, बेस केस में कैसे बिल्ड करता हूं, स्मॉलेस्ट इनपुट, स्मॉलेस्ट वेरिएबल इनपुट्स चेक करता हूं मैं, है ना, स्मॉलेस्ट वेरिएबल इनपुट्स जो भी मेरे पास होते हैं। तो काइंड राइट नाउ मेरे पास दो सीक्वेंस हैं, अगर आई एम सेइंग दैट आई हैव टू सीक्वेंसेस, आई हैव टू सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई, इसमें मेरे पास दो स्ट्रिंग है और उन दोनों स्ट्रिंग्स के साइज है, दैट इज इसकी साइज n है और इसकी साइज m है, ठीक है। और हर स्टेट में जैसे ही मेरी स्ट्रिंग्स सब प्रॉब्लम्स जाएंगी, सब प्रॉब्लम्स में ये दोनों चीजें चेंज होती रहेंगी, साइज ऑब्वियसली रिड्यूस होता जाएगा दोनों स्ट्रिंग्स का, है ना, या फिर दोनों सीक्वेंसेस का साइज रिड्यूस होगा। तो दैट्स व्हाई आई कैन से कि मेरे जो वेरिएबल स्टेट्स हैं वो क्या क्या हैं, n एंड m, वेयर n एंड m आर बोथ लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस, both are length of subsequence, ओके, फाइन। तो अभी तक मुझे ये पता चल गया कि वेरिएबल स्टेट्स क्या क्या हैं। अब मैं ये देखता हूं कि मैंने रिकर्जन सबसे पहले कैसे लिखा था, ठीक है। तो रिकर्जन के लिए हम देखते हैं, सबसे पहला बेस केस, अगर मेरी कोई भी पहली स्ट्रिंग 0 है, या फिर मतलब पहली स्ट्रिंग एम्प्टी है, दैट मींस उसकी लेंथ 0 है, या फिर दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी है उसकी लेंथ 0 है, तो आई हैव टू सिंपली रिटर्न 0, क्योंकि उस केस में अगर मेरे पास मान लो कोई ऐसा एग्जांपल है, एक्स स्ट्रिंग जो मेरी है वो है एम्प्टी, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, और वाई स्ट्रिंग जो मेरी है ए बी सी डी, ठीक है, इन दोनों में कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, 0, दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग 0, फाइन। दूसरा केस कब आएगा, ये दोनों केसेस है मेरे चॉइस डायग्राम के, दो केसेस हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ब्रीफ में फिर से बताता हूं। सपोज पहला क्या था, मेरे पास दो स्ट्रिंग्स थी, एक्स ए बी सी डी ई, ठीक है, और वाई थी सपोज मेरे पास ए बी सी डी एफ, ठीक है। नाउ इसकी लेंथ कितनी है, 5, इसकी लेंथ भी 5 है, तो यू कैन से करंट स्टेट n और m की वैल्यू 5 और 5 है, ठीक है। अब तुम सिंपली चेक करोगे फिफ्थ कैरेक्टर और इसका फिफ्थ कैरेक्टर, है ना, फाइन।
अब तुम सिंपली चेक करोगे, इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं यहां से चॉइस डायग्राम अगर बनाना शुरू करूं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर दिस विल बी इक्वल और इधर दिस विल नॉट बी इक्वल, है ना। अगर ये इक्वल होगा इट मींस ये वाला केस, अगर ये इक्वल है दैट इज x m-1 एंड y-1 अगर इक्वल है, m-1 y-1 क्यों किया, वो इंडेक्सिंग की वजह से, तो वो आई गेस समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और मैं यहाँ पे सपोज करके 1 से चलता हूँ, ठीक है। तो अगर ये दोनों करंट इक्वल हैं, ठीक है, अगर इक्वल हैं तो मुझे अपने LCS की लेंथ किससे 1 से इंक्रीज कर देनी थी सिंपली, और जो लेंथ है वो अब कितनी हो जाएगी m-1 और n-1, तो इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया 1 प्लस LCS ऑफ स्ट्रिंग मेरी सेम रहेगी x और y, बस उनकी जो लेंथ है वो मेरा m-1 और n-1 हो जाएगा। दैट इज मैंने करंट कैरेक्टर को इक्वल करके कंसीडर कर लिया, ठीक है, फाइन। अब दूसरा केस आता है जब ये चीज मेरी इक्वल नहीं है, ये वाला केस है ना, ये वाला केस। तो इस केस में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था पूरा डायग्राम बना के कि इस केस में भी दो केस हैं, ठीक है। तो या फिर मान लो ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, ओके, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इसका सेकंड कैरेक्टर है, ये X स्ट्रिंग है और ये Y, ये E और E दोनों मैच हो जाएं, है ना, और ये E और E मैच हो गए अगर, तो इस केस की हम क्या कर सकते हैं, इस केस को कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों को मैचिंग कर सकते हैं ना। तो एक केस ये हो जाएगा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा हो जाए, ये F है और ये E है और यहाँ पे ये E है, ठीक है। तो Y का जो लास्ट कैरेक्टर है वो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ X के साथ मैच हो जाए, है ना। तो हम कोई भी कैरेक्टर छोड़ नहीं सकते, हम कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ नहीं सकते, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर दीज टू बोथ केसेस, और इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसको हम एज अ आंसर कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम क्यों, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जस्ट गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो। इसलिए मैंने दोनों केसेस लिखे, देखो मैंने दो फंक्शन कॉल किए हैं एज अ रिकर्जन इन रिकर्जन, ठीक है, और मैंने दोनों को यहाँ पे लिखा है। पहले में मैंने क्या लिया, सिंपली स्ट्रिंग x की लेंथ सेम रखी और y की डिक्रीज की, y की लेंथ डिक्रीज की, y की लेंथ सेम रखी और x की डिक्रीज की, ओके। तो ये मेरे दोनों कॉल हो गए। अब ये मेरा रिकर्जन हो गया। अब मुझे सिंपली इसमें कितनी 2 या 3 लाइनें ऐड करनी है और ये सिंपली पूरा मेरा डीपी का कोड बन जाएगा, डीपी मेमोराइजेशन। मैंने सबसे पहले आपको इस प्लेलिस्ट में डीपी मेमोराइजेशन पढ़ाया था, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें बेसिक्स हैं, आपको सीख के आनी पड़ेंगी ऑलरेडी, ओके फाइन। तो होता क्या था डीपी मेमोराइजेशन में, मैं क्या करता था, सबसे पहले मुझे एक ऐसा स्टोरेज स्पेस चाहिए जहां पे मैं सारी पॉसिबल चीजों का रिजल्ट स्टोर करवा सकूं, जो जो मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूं उन सबका रिजल्ट मुझे स्टोर करना है ना। तो मैं ऐसा क्या लूंगा, वेरिएबल स्टेट्स मेरी क्या क्या है, मैं एक डीपी एरे बनाऊंगा, दैट इज वेरिएबल स्टेट्स m और n। तो मैं बोल दूंगा कि m+1 और n+1 की मैंने एक डीपी एरे बना ली, ओके। m+1 n+1 क्यों लिया, सिंपली क्योंकि इंडेक्सिंग की वजह से, m क्योंकि 0 से m-1 इंडेक्स होगा और मैं ले रहा हूं 1 से m तक, ठीक है, इन माय आंसर। तो मैंने ये ले लिया। अब इसको मैं पहले इनिशियलाइज करता था पूरी की पूरी डीपी एरे को, किससे इनिशियलाइज करता था ये भी मैंने कई बार बताया पूरी प्लेलिस्ट में। कोई भी अनएक्सपेक्टेड आंसर से इनिशियलाइज करो, जो तुम्हारा कभी भी इस रिकर्जन पूरे रिकर्जन के थ्रू वो आंसर कभी पॉसिबल है ही नहीं, ओके। तो दैट आंसर, कौन सा आंसर पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारा आंसर 0, सारी की सारी पॉजिटिव आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, ड्यूरिंग दिस रिकर्जन कॉल। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इनिशियलाइज दिस डीपी एरे विद -1, क्योंकि कभी भी x और y अगर दो स्ट्रिंग है उसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ -1 हो ही नहीं सकती, मिनिमम आंसर पॉसिबल इज 0। तो तुम इस डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज कर सकते हो, ओके फाइन। तुमने इस डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज कर दिया एंड तुमने डीपी एरे ले ली जितने की तुम्हें जरूरत थी। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम अगर रिकर्जन में मैं शुरू से बोलना शुरू करूं तो जब भी तुम कोई एक नया रिकर्जन कॉल कर रहे हो तुम्हें सबसे पहले चेक कर लेना है कि तुम करंट वैल्यू, दैट इज डीपी ऑफ, तुम करंट वैल्यू किसके लिए कॉल कर रहे हो, mn के लिए, तो डीपी ऑफ m एंड n तुम्हारी कहीं ऑलरेडी कंप्यूटेड तो नहीं है। अगर ऑलरेडी कंप्यूटेड है तो इसकी वैल्यू -1 नहीं होगी, है ना, -1 के अलावा कुछ भी होगी, पॉजिटिव वैल्यू -1 नहीं होगी। तो सिंपली चेक इफ डीपी ऑफ mn इज नॉट इज इक्वल्स टू -1, यू कैन सिंपली रिटर्न डीपी ऑफ m एंड n।
तुम्हें नीचे इसके जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें करंट स्टेट का आंसर दैट इज mn का आंसर ऑलरेडी पता है, तुम वही रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो तुम यहां पे एक लाइन ऐड करोगे, सिंपली ये लाइन। ठीक, तुम यहां पे सिंपली एक लाइन ऐड करोगे ये वाली, कि अगर तुमने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया तो दिस। अदरवाइज जब भी तुम नीचे आओगे जहां पे तुम अपनी रिकर्जन कॉल कर रहे हो, वहां पे तुम्हें सिंपली क्या ऐड करना है, तुम रिकर्जन तो कर ही रहे हो, है ना, तुम पूरा का पूरा रिकर्जन तो कर ही रहे हो सब प्रॉब्लम के लिए। अब तुम्हें बस इसका रिजल्ट स्टोर करना है, तो तुम सिंपली क्या करोगे, यहां पे किस चीज की वैल्यू निकाल लो, डीपी ऑफ mn की, तो तुम यहां पे सिंपली लिख दोगे डीपी ऑफ m एंड n इज इक्वल्स टू दिस 1 प्लस LCS ऑफ x y m-1 एंड n-1। ओके, और नीचे यहां पे भी तुम सेम थिंग लिख दोगे, सेम थिंग तुम्हें लिखनी है कि डीपी ऑफ mn में ये चीज स्टोर हो जाए। ठीक है, फाइन। तो अगर मैं इसी कोड को रिकर्जन में बदल दूं मेमोराइजेशन के थ्रू, तो मैं आप सिंपली क्या लिखता हूं, पूरे के पूरे स्टेप्स ऐड कर देता हूं। मैं सबसे पहले ऊपर एक डीपी एरे बना लेता हूं इन डीपी ऑफ m+1 एंड n+1 सिंपली। ठीक है, इसको मेमसेट से इनिशियलाइज कर देता हूं, मेमसेट से मैंने मेमसेट से इनिशियलाइज कर दिया है ना, फाइन। एक चीज याद रखना कि ये जो डीपी एरे सबसे ऊपर इनिशियलाइज करना, ओके, ताकि जब बार बार तुम डीपी एरे को चेंज करो तो मैं इस फंक्शन में पास ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये हाईलाइट थी या फिर ये बोनस था इस क्वेश्चन का, कि बार बार चेंज करने से बचने के लिए तुम सिंपली क्या कर सकते हो, सबसे ऊपर इनिशियलाइज कर दो। अब तुम्हें बस जहां जहां तुम रिजल्ट स्टोर कर रहे हो वहां वहां स्टोर, जहां जहां तुम रिजल्ट कंप्यूट कर रहे हो, नया रिजल्ट रिटर्न कर रहे हो, वहां वहां तुम्हें स्टोर करते जाना है। ठीक है, तो तुम यहां पे लिख दो सिंपली डीपी ऑफ m n इज इक्वल्स टू 0, तुम स्टोर भी कर दोगे और रिटर्न भी कर दोगे। एंड एट द एंड तुम सिंपली चेक कर लो कि इफ डीपी ऑफ m एंड n डज नॉट इज इक्वल्स टू -1 है, सिंपली रिटर्न डीपी ऑफ m एंड n। ठीक है, और एल्स में तुम्हें इसको मेमोराइज कर देना है सिंपली, तो तुम यहां पे सिंपली लिख दो डीपी ऑफ m n इज इक्वल्स टू दिस, और इसको भी मेमोराइज करना है तुम्हें, है ना, तो यहां पे भी सिंपली सेम चीज लिख दो डीपी ऑफ m n इज इक्वल्स टू दिस। अब डीपी ऑफ mn रिटर्न भी हो जाएगा यहां से, और ये चीज मेमोराइज भी हो जाएगी। मेमोराइज मतलब स्टोर हो जाएगी कहीं पे, तो जब भी तुम करंट स्टेट की वैल्यू दोबारा निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अब देखना होगा कि रिकर्जन कॉल नहीं होगा, यहां से चीज रिटर्न हो जाएगी, वो चीज सेम चीज। ओके, यहां से वो चीज रिटर्न हो जाएगी और तुम रिकर्जन कॉल से बच जाओगे। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन तुम्हारा हो गया मेमोराइजेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हमें पता है क्या देखना है, नेक्स्ट वीडियो में हमें देखनी है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो टॉप डाउन अप्रोच हम सिंपली क्यों देखते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि कई बार होता क्या है, तुम्हारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, कई सारी रिकर्जन कॉल जब तुम करते हो तो जो मेमोरी में स्टैक होता है तुम्हारा वो फिल हो जाता है, और वहां पे काइंड ऑफ मेमोराइजेशन स्टैक ओवरफ्लो की एरर दे देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इसी का टॉप डाउन अप्रोच। और यू कैन से वहां पे हम टॉप डाउन अप्रोच में सिंपली क्या करेंगे, जो भी हम रिकर्जन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिकर्जन को हम वहां से हटा देंगे, सिंपली रिकर्जन को हटा के हम नॉर्मल कोड लिखेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Second thing, if you haven't registered for Grand Coding Contest, just go and register for this. There is 0 fee registration. Okay, and just go and subscribe this YouTube channel. Thank you guys for watching.